India, the day our nation adopted its constitution on 29 November 1949. Our constitution is the backbone of our democracy. It teaches us equality, justice and liberty. It gives us important rights and also reminds our duty. We all are know that Dr. Bhimrao Ambedkar and the members of Constitutive Society were together make our constitution, who worked tirelessly created the powerful document. The privilege teaches the value of equality and value that guide our nation. We all are promised to follow the principle and contribute to building the stronger, most united India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. A very, very human and a pleasant morning to one and all that together here. Today we are gathered to celebrate our documents that is not just a piece of our history. It's the foundation of the country we live in, our constitution. It's a life of a choice we make every day. It gives us the right to speak our mind, to vote the community, and it reminds us that with those rights come responsibility to respect others, to stand up for what's the right, and to keep our democracy strong. As a student, we are the next generation as a citizen and as a leader. Today it's best to learn more about our constitution, to ask the question, to be active of our constitution. In our community, whether it's through a class discussion or school project, each of us can help to keep the spirit of democracy and the constitution alive. So at the end, happy Constitution Day everyone. Let's carry the value of liberty and justice forward together. Thank you. Good morning everyone, respected sir, everyone, teachers and all of my dear friends. My name is Anushka, I am studying in class 6th and today we all have gathered here to celebrate National Constitution Day. As we know that National Constitution Day is celebrated every year on 26th November in India. It is also known as Samvidhan Divas. Dr. Bhimrao Ambedkar was the architect of our Indian Constitution. It is celebrated to remember the day of adoption of the Constitution of India as it was adopted on 26 November 1949. This day is also celebrated to pay our tribute to Dr. Bhimrao Ambedkar. He is known as the father of the Indian Constitution. Our Constitution is the backbone of our democracy, giving us to live together peacefully in our diverse country like India. Let us pledge to follow its principle, unity of our nation. Thank you, Jai Hind. Look here, please. Respected principals and managing director, teachers and all of my dear friends, very fresh good morning to all of you. My name is Vinita from class 8. Today we are telling the speech on Constitution Day. Today we are celebrating the Constitution Day to obtaining the Indian Constitution on 26 November 1949. Our Constitution has supreme law that guides our nation. It ensures justice, liberty, equality and fertility of all citizens. Hindi word constitution means is Samvidhan, some plus Vidhan, some means equal and Vidhan means law and rule. It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the Indian constitution. The constitution had 395 articles, 22 parts and 8 schedules. But now it has 448 articles and 25 parts and 12 schedules. Thank you. Have a nice day. Good morning everyone, respected principals and teachers and all my dear friends. My name is Prachi Pokhariya. Today is 26 November and we are celebrating Constitution Day and also known as Samvidhan Divas. This day is very special because it marks the appointed of our Indian Constitution in 1949. Our Constitution is a very important document that guides our country and ensures that everyone is treated equally and with justice. The Constitution was made the team of wise people led by Dr. Bhimrao Ambedkar, who is also known as the father of Indian Constitution. He worked hard to make sure that our condition is fair or just for everyone. Let's all remember the values of our Constitution and try to follow them in our daily lives. We should
other rights and work together to build a fair and just society. Thank you and आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूज्य गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं सीमा चंद आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज 26 नवंबर है और आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बेहद खास है। आज ही के दिन 1949 में हमारी आज़ाद भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को लागू किया था। इसी राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसके निर्माण में हमारे नेताओं विशेषकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। आइए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सब यह प्रण लें कि हम केवल अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं सोचेंगे बल्कि अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करेंगे। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस सपने को साकार करेंगे जहाँ हर नागरिक को समान अवसर व सम्मान मिले। याद रखिए, हमारा संविधान हमारी शक्ति है और हमें इस शक्ति का उपयोग अपने देश को और महान बनाने के लिए करना है। जय हिंद, जय सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम सभी संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यह दिन हमें हमारे संविधान की महत्ता और उसके मूल्यों की याद दिलाता है। भारतीय संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। यह हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान मूल्यों का संदेश देता है। हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विशेष रूप से याद करते हैं, जिन्हें संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। उन्होंने समाज के हर वर्ग के अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान हमें मूल अधिकार देता है, लेकिन साथ ही हमें अपने मूल कर्तव्यों का पालन करने की भी प्रेरणा देता है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें संविधान के नियमों का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना चाहिए। आज के दिन आइए हम सभी संकल्प लें कि हम संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे और देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि कंठों से निकली एक यही स्वरधारा है, सबसे प्यारा सो संविधान हमारा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं ज्योति जोशी कक्षा 8 की ओर से आप सभी के समक्ष अपना विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय संविधान दिवस पर है। भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर सन 2015 को पहली बार भारत में संविधान दिवस मनाया गया। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत के इस विशाल संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone. My name is Divyanshu Joshi, scholar of class 6. Today we are celebrating Constitution Day. Our day of date adoption significance when we honor the adoption of the Indian Constitution on the November 26, 1949. This foundation document largely crafted by Dr. Bhimrao Ambedkar shows that the supreme law of India and establishes our democratic framework, safeguarding the rights and defining the duties of every citizen. Constitution Day is not just a day remembrance, it is a reminder for us to actively participate in our democracy. Thank you. Have a nice day. आदरणीय अध्यापिका और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं दिव्यांग कक्षा 8 की ओर से आज आपके सामने विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है संविधान दिवस। आज जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो उन महान दस्तावेज को सम्मान देते हैं
को मेरा सुप्रभात। मैं मदन अधिकारी कक्षा 8 की ओर से आप सबके सामने संविधान दिवस की लाइन बोलना चाहता हूँ। भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारतीय सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत के इस विशाल संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं पूर्णिमा काल की कक्षा 6 की ओर से आप सभी के सामने संविधान के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हम सब बच्चे प्यारे प्यारे आज मनाए दिन न्यारे न्यारे, संविधान का नियम बताए, अधिकार का फूल खिलाए। अम्बेडकर जी कहते थे सब मिलजुल कर रहते थे, देश का मान बढ़ाए हम, नियम हम माने हम। धन्यवाद। सभी को आज संविधान दिवस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। इसे समय के अनुसार बदलना और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सोचिए, देश 1950 जैसा तो नहीं रहा। आजकल डिजिटल युग है, ऑनलाइन प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण संकट आदि। बिल्कुल, पर याद रखिए संविधान के निर्माता भी यही चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां इसे अपनी जरूरतों के अनुसार डालें। तो आप यह कहना चाहते हैं कि परिवर्तन सीधे जरूरत के अनुसार और संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखकर होना चाहिए। जी हाँ, हमारे विचार अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक देश और संविधान की उन्नति है। धन्यवाद। Respected judges and participants, while progress is essential, but let us not forget about stability and legal clarity. Our constitution clearly lies on the basic principle laid down by its founder. Interpreting it too loosely turn it into an elastic document that can set up any political agenda. Our constitution is already one of the longest and most detailed in the world. It clearly dignifies rules, regulation, duties, responsibilities, and limitations. When our society needs new rules, we have separate democratic processes, amendment processes. But judges and policy makers must not reinterpret the basic agenda and its own political value. Thank you. Have a nice day. Honorable judges, respected teachers and my friends, today as we celebrate Constitution Day, we acknowledge the visionary document that lay on the foundation of our democracy. But we must also ask, should this Constitution grow with time? I strongly believe yes, it must. The farmer of our Constitution designed it to guide a nation that would evolve socially, politically and economically. They themselves added provision for amendment to proving this that they knew the society and the Constitution should adapt accordingly. If we interpret the Constitution regardlessly, we risk a living of freezing society in time. Issues like digital privacy, environmental protection and gender equality, emerging technologies were enabling 1950s of flexible interpretation allow the Constitution to modern values such as true to its core values like justice, equality, fraternity. Thus, the Constitution is not a release; it is a living, breathing guide that is exactly how it must remain. Thank you and have a nice day. Honorable judges, respected teachers, and all of my dear friends, I am Pooja Bhardwaj standing here, and they are all my friends. Is debate about Constitution Day. So let's start. Protects the fundamental rights and the liberties. The Constitution has to protect the fundamental rights and the liberties of the citizens of the country. The Constitution is like a protection shield against other powers. Constitution defines the structure, power and basic function of government, clarity of government which defines
बच्चों, आज संविधान दिवस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जिसे समय के अनुसार बदलना और आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि संविधान को उसकी मूल भावना में समझना और लागू करना चाहिए। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा बदलेंगे तो इसकी स्थिरता खो जाएगी। लेकिन सोचिए, देश 1950 जैसा तो नहीं रहा। आज डिजिटल युग है। ऑनलाइन प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण संकट, एआई, ये समस्याएं तब नहीं थी। अगर संविधान बदलते समय के अनुसार नहीं चलेगा तो क्या यह आधुनिक समस्याओं का समाधान कर पाएगा? मैं यह मानती हूँ कि समय बदलता है, लेकिन संविधान में पहले से ही संशोधन की प्रतिक्रिया जरूरत पड़े तो संसद बदलाव कर सकते हैं, मगर हर बात में लचीली व्याख्या करने से न्यायपालिका और राजनीति पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, याद रखिए, संविधान के निर्माता खुद चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां इसे अपनी जरूरतों के अनुसार डाले। इसी कारण संविधान में बदलाव की गुंजाइश दी गई। यदि समाज विकसित हो सकता है तो संविधान की व्याख्या भी विकसित होनी चाहिए। परंतु यदि हर पीढ़ी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को नई परिभाषा करती रही तो स्थिरता कैसे बनी रहेगी? संविधान देश के लिए एक मजबूत ढांचा है जिसे बार बार लचीला बनाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। तो आप कहना चाहते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे जरूरत के अनुसार और संविधान की मूल भावनाएं को ध्यान में रखकर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और आप यह कहना चाहते हैं कि समय के बदलाव के साथ संविधान की व्याख्या और उपयोग में लचीलापन होना चाहिए। जी हाँ, हमारे विचार अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक देश और संविधान की उन्नति है। और यही संविधान दिवस के असली भावना भी है। संविधान को समझना, उसका सम्मान करना और बेहतर भारत के लिए सही चर्चा करना। धन्यवाद। Morning all of you, I am Samrat from class 4. Today I am telling a poem about Constitution Day. On the 20th of November, a promise lit our way. A promise lit our way. A book of rights and duties. A book of rights and duties was born on Constitution Day. Thank you. आचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं अंजलि कक्षा 7 की ओर से आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता है, कोटि कोटि घंटों से निकली एक यही स्वर धारा है, सबसे प्यारा सुविधान हमारा है। सत्य सत्य नवल प्रमाण में तू ही एक सहारा है। बहते दरियों में नावों का कितना सुंदर किनारा है। क्षमता का अधिकार दिया है, शिक्षक का उजियारा है। नारी को सम्मान दिलाकर उज्जवल भविष्य संवारा है। ना कोई राजा कोई प्रजा है, लोकतंत्र अति प्यारा है। दुनिया में गुणगान तुम्हारा, नीति बड़ा ही न्यारा है। जीव जंतु पशु पक्षी का भी जीवन तेरे द्वारा है। अर्पणों के धाराओं में मिट गया अंधियारा है। देश का निर्माण है तू, काशी जल तू द्वारा है। संविधान का पन्ना तेरा और हमारा है। भीमराव की चली लेखनी दूर हुआ प्यारा है। सबसे प्यारा सुविधान हमारा है। धन्यवाद। प्रभात दोस्तों, मेरा नाम अंशिका, मैं कक्षा 4 की छात्रा आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोटि कोटि घंटों से निकली एक ही स्वर धारा है, सबसे प्यारा संविधान हमारा है। संसद नाम तुम्हें एक भी सहारा है। समता का अधिकार दिलाया। शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा नाम गौरव होली, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज मैं संविधान दिवस के ऊपर कविता सुनाने जा रहा हूँ। संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है। भारत का जो संविधान है पूरे देश का सर्वोच्च विधान है। सबको जोड़कर है रखता, भारतवासी की शान है। भारतीयों के अधिकारों की पहचान है। संविधान को प्रणाम है। धन्यवाद। महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों,
आपकी ओर से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मेरी कविता है, हम सब बच्चे प्यारे प्यारे, आज मनाए दिन न्यारे न्यारे, संविधान के नियम बनाए, अधिकारों के फूल खिलाए। अम्बेडकर जी कहते थे सब मिलजुल कर रहते थे, देश का मान बढ़ाए, हम नियम हमेशा माने। धन्यवाद। शुभरात, मेरा नाम है दीपांशु कौर, मैं कक्षा 4 का छात्रा हूँ। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम सब बच्चे प्यारे प्यारे, आज मनाए दिन न्यारे न्यारे, सरकार ने नियम बनाए, अधिकारों के फूल खिलाए। अम्बेडकर जी कहते थे सब मिलकर के रहते थे। थैंक यू। मेरा सुप्रभात, मैं जय जोशी कक्षा 4 की हूँ। कक्षा 4 की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोटि कोटि कंठों से निकली एक यही स्वरधारा है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा सुसंविधान हमारा है। सचत नवल प्रणाम तुम्हें, एक तुम्ही सहारा है, समानता का अधिकार दिया ये शिक्षा का उजियारा है, नारी को सम्मान दिला के उज्जवल भविष्य सवारा है। धन्यवाद। To all, I am Samrit Pal from class 7 is going to reciting the poem. My poem is: on Constitution Day, we proudly stand, honoring the laws that guides our land. A book of rights so fair and true, protecting me and protecting you. It gives us right, it gives us voice. It is freedom in every Indian voice. With liberty and light, equality scale, Dr. Bhimrao Ambedkar, our leader so bright, work day and night to carve our future. Thank you. Have a nice day. Good morning everyone. So today we are celebrating a Constitution Day. A Constitution Day is guide our country and help our democracy. So we must change the time. The farmer of our Constitution is designed to guide a nation that would be evolved socially, economically and politically. Themselves added provision and amendments proving the new society change and should adapt accordingly. If we understand the Constitution